जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप ये डीजी का एक ऑर्डर देख रहे हैं। ऑर्डर नंबर है डीजीएस ऑर्डर नंबर 15/2022। ये थोड़ा पुराना ऑर्डर ज़रूर है, लेकिन ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। अगर आप मास्टर हैं, चीफ ऑफिसर हैं या इंडियन ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और आपके जहाज जो इंडियन वाटर्स में सेल करते हैं, तो आपको इस सर्कुलर से, इस ऑर्डर से इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये ऑर्डर है डीजीएस ऑर्डर नंबर 15/2022। सब्जेक्ट है नॉन ऑपरेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS ऑन द शिप्स इन इंडियन वाटर। Automatic identity system is required to be as per regulations V5/19 of the SOLAS Convention, which list out the navigation equipments to be carried on board ships according to the ship type. 2. IMO resolution IMO Resolution 8.1106/29 provides the revised guidelines for the on-board operational use of ship-borne automatic identification system, इसको AIS बोला जाता है। The said revised guidelines also empower the master to switch off the AIS in certain circumstances pertaining to the safety and security. The relevant section of the said or resolution is as follows. रिवाइज गाइडलाइंस है मास्टर के लिए, जो कि कोई सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में वेसल के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उसका AIS स्विच करते हैं। AIS शुड ऑलवेज बी, और उसका रिवाइज ऑर्डर है ये। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि AIS शुड ऑलवेज बी इन ऑपरेशन व्हेन द शिप्स आर अंडर वे और एट anchor if the master believes that the continual operation of AIS might compromise safety or security of his her ship, or where security incidents are imminent, the AIS may be switched off unless it would further compromise the safety or security. If the ship is operating in a mandatory ship reporting system, the master should report this action and reason for doing so to competent authority. Actions of this nature should always be recorded in the ship's logbook together with the reason of doing so. बोला जा रहा है कि अगर कोई मास्टर किसी जहाज का AIS जो है बंद कर देता है, और क्यों बंद कर देता है, सेफ्टी सिक्योरिटी इंसिडेंट कुछ उसके कारण बंद कर देता है, तो उसका जो है रिकॉर्डिंग आपके जहाज पर रखना है। लॉग बुक में एंट्री होना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। इन केस ऑफ सिचुएशंस वेयर द मास्टर ऑफ शिप ऑफ एनी फ्लैग इन इंडियन वाटर्स or transiting through Indian water decides to switch off the AIS, or the AIS of the ship becomes non-operational, the master of the ship is required to intimate the same to the nearest Indian MRCC immediately and DGCOM center. Entry of the occurrence should also be made in the ship's logbook. बताया जा रहा है कि किसी भी केस में अगर कोई वेसल, इंडियन फ्लैग वेसल और आउटर फ्लैग वेसल इंडियन वाटर से गुजर रहा है, तो और उसके मास्टर ने उसका AIS बंद करने की डिसाइड किया है, तो AIS क्यों बंद है, इस चीज की रिपोर्ट आपको MRCC में या DGCOM पे देना है, और इसकी एंट्री जो है आपके शिप लॉग बुक में होने हैं। Any vessels in Indian waters or transiting through the Indian waters with non-operational AIS could be intercepted and detained, as such vessels could pose a threat to security. और ऐसे कोई भी जहाज जो इंडियन वाटर से आप लेके जा रहे हैं जिसका AIS नॉन ऑपरेशनल है, उसके जहाज को जो है डिटेन किया जा सकता है।
क्योंकि वो सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में जाना जाएगा। A vessel in dry dock will also intimate about the switching of the AIS to MRCC and DGCOM center prior entering the subsequently when it is switched up। कह रहा है कि वेसल जो है ड्राई डॉक में है और वहाँ पे भी अगर वो AIS स्विच करता है, ऑफ करता है, तो उसको MRCC या DGCOM में बताना है। Considering the security implications, the following provisions shall apply to the vessel with non-operational AIS or AIS switch off without informing the concerned authority। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई वेसल जो है इंडियन वाटर में बिना इन्फॉर्म के और AIS बंद करके या नॉन ऑपरेशनल AIS लेके आता है तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, ये देखिए डीजी का ऑर्डर है भाई। पहला वेसल शैल बी डिटेन, वेसल को डिटेन कर लिया जाएगा। फी ऑफ सेकेंड नंबर, fee of ₹8 lakhs is to be paid the central government through Bharat Coast Payment System as per the principle contained in section 25 of DG Shipping Circular number 13 of 2010 for ships operating without valid certificate as non-operational AIS effect safely। C. Action may also be initiated against master and owner of the vessel। भाई अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है तो मास्टर के खिलाफ भी और ऑनर्स के खिलाफ भी आपका डीजी शिपिंग जो है एक्शन ले सकता है और आपको जो है 8 लाख का आपको फाइन पे करना होगा भारत कोष के थ्रू। आपका सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2010 डीजी शिपिंग ऐसे लिख के आपको पे करना है। और the provision of para 6 of this order shall only be implemented on the decision of the principal officer of the jurisdictional mercantile marine department। A party aggrieved by the decision of the principal officer may appeal against the same to the director general of shipping। कैप्टन अमिताभ कुमार का देखिए डीजी शिपिंग का सिग्नेचर है और एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं और ये DGS ऑर्डर नंबर 15 ऑफ 2022 है। बहुत ही काम का चीज़ है। तो आप लोग जो हैं अगर जहाज़ पे हैं तो अपना AIS ओपन रखें। फैक्ट मैंने सुना है कि जो रसिया चाइना बैन कार्गो वेसल कैरी करते हैं उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो AIS को बंद करा के चलाती हैं और बाद में लोग पकड़े जाते हैं तो उनका COC जो है दांव पे लगा रहता है। तो कृपया आप नॉन ऑपरेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अगर है वेसल पे तो उसके बारे में पोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें, ऑनर को इन्फॉर्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।